Period was also important for one more reason other than the polity, and the reason was the trade and commerce, the growth of trade and commerce. So we have two routes at that particular time. One is known as Uttar Patha, other is known as Dakshin Patha. Uttar Patha is the route that is connecting northern and eastern parts of India with the northwestern fringes, that is in present day Pakistan and further beyond. And the second is known as the Dakshin Patha. Dakshin Patha connected the peninsular India with the western and northern parts of India. Now, when we discuss about the Dakshin Patha, the Dakshin Patha was very major. Why? Because it is connecting North and South India. It started from Kaushambi near Allahabad and running through Ujjaini. Ujjaini is Ujjain, present day Ujjain, modern Ujjain. So, extended further to Brigukacha, or Brauch, an important port on western coast, and Dakshin Patha was further connected with Pratishthan. Pratishthan is modern Python, the capital of the Satavahanas. So we see that जो external trade है वो मानसून की जब डिस्कवरी होती है बाय हिपैटिस, उसके बाद में उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, बिकॉज ए ग्रीक नेविगेटर 45 AD में जब डिस्कवर करते हैं मानसून्स को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सी वॉयजेस ट्रेडिंग पर्पस के लिए आते हैं, उनको यूज़ किया जाता है. इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो वेस्टर्न कोस्ट पे रहे इंडिया के वो थे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में भारू कच्छा, सोपरा, कल्याणा, मुजिरिस, और इन पोर्ट से शिप रोमन एम्पायर में जाते हैं थ्रू द रेड सी. नाउ साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड है वो सी के द्वारा हो रहा है, यानी समुद्र के द्वारा हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड. प्रोमिनेंट पोर्ट्स जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे वो है तम्ब्रालिप्ती इन वेस्ट बंगाल, Arikkamedu in Tamil Nadu coast, and sea trade was also conducted through Marukcha and the ports of Southeast Asia. Now, trade with Western Central Asia, how was it? Let's look at that also. So, an important feature of the commercial activities in the post-modern period was the thriving trade between India and the West, where the Roman Empire was at its height. Initially, this trade was carried out through land, but owing to frequent obstructions created by the Persians, who ruled the area through which these trade routes passed, the focus was shifted to sea routes. Now ships could move directly from Indian ports to the ports on Red Sea and Persian Gulf. तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का ये भी रहा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कि जो ट्रेड है, थ्राइविंग ट्रेड है इंडिया और वेस्ट के बीच पे, जहाँ पे रोमन एम्पायर अपनी हाइट पे है उस समय ये ट्रेड हो रहा है. तो इनिशियली ये जो ट्रेड है ये लैंड पे हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है, लेकिन पर्शियंस इसको बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं वो लोग, और पर्शियंस जो हैं वो उन एरियाज़ को रूल कर रहे हैं जहाँ से ये ट्रेड रूट्स पास करते हैं. अब जो फोकस है वो सी रूट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जो शिप्स हैं वो डायरेक्टली मूव कर सकती हैं इंडियन पोर्ट से टू द पोर्ट्स ऑन रेड सी, यानी रेड सी पे जो पोर्ट्स हैं वहाँ डायरेक्टली वो मूव कर सकती हैं और पर्शियन गल्फ पे. तो जो बेस्ट अकाउंट है, द बेस्ट अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड इज गिवन इन द बुक कॉल्ड Periplus of the Erythraean Sea, which was written in the 1st century AD by an anonymous author. Main requirement of the Romans were the Indian products such as spices, perfumes, jewels, ivory, and fine textiles, muslin. Spices exported from India to the Roman Empire included pepper, also called Yavanapriya, perhaps because of its popularity among Romans. The spice trade with the Roman Empire was largely based in
South India. Romans also imported several precious, semi precious stones like diamond, carnelian, turquoise, agate, sapphire, etc. Besides pearls, indigo, sandalwood, and steel, etc. So हम ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वो है thriving trade between India and West Asia. इंडिया एंड वेस्ट, इंडिया एंड दी वेस्ट. सो बेस्ट अगर हम इंडो रोमन ट्रेड का देखना चाहते हैं तो वो हमें मिलता है एक बुक में जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द राइथरियन सी, जो कि लिखी गई फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक इनॉनिमस ऑथर ने इसे लिखा, यानी उनका नाम हम नहीं जानते किसने लिखा, अज्ञान, ठीक है, अज्ञात ऑथर हैं वो. सो मेन रिक्वायरमेंट रोमन्स की थी इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ज्वेल्स हो गए, आइवरी हो गए, फाइन टेक्सटाइल्स हो गए जैसे मसलन है. स्पाइसेस इंडिया से जाते थे रोमन एम्पायर में, जिसमें पेपर इंक्लूडेड था. पेपर को यवन प्रिया भी कहा जाता है. यवन प्रिया शायद इसलिए कहा जाता हो क्योंकि रोमन्स इसको बहुत पसंद करते थे. इट वॉज वेरी पॉपुलर अमंग रोमन्स. तो स्पाइस ट्रेड है रोमन एम्पायर का, वो लार्जली साउथ इंडिया में था. रोमन्स सेवरल प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि डायमंड है, कार्नेलियन है, टर्क्वाइज है, अगेट है, सफायर है, पर्ल्स, इंडिगो, सैंडलवुड के अलावा, स्टील के अलावा. Now, against this import, Romans exported gold and silver to India. It is provided by a large number of Roman coins of the 1st century AD found in the subcontinent. This indicates an enormous drain of gold from the Roman Empire towards India. Other important items of export from Roman Empire included wine, which is indicated by wine items of export, uh, which is indicated by wine amphorae and shards of Roman ware, shards of Roman ware found in significant numbers at A.M.U in South India. Besides, the Western traders also brought tin, lead, coral and slave girls. सो जो रोमन्स का जो इम्पोर्ट है उसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया से बाहर जा रहा है. सो बहुत सारा रोमन कॉइनेज इंडिया में हमें मिलता है फर्स्ट सेंचुरी एडी में, जिससे हमें ये पता चलता है दैट देयर वाज मतलब सॉरी, इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं स्पाइसेस एंड अदर गुड्स, और उसके बदले में रोमन गोल्ड और सिल्वर इंडिया में एंट्री लेता है. और ये हमें पता चलता है बाय फाइंडिंग अ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इन द सबकॉन्टिनेंट. तो इससे हमें ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड रोमन एम्पायर से इंडिया की तरफ आया. और दूसरे इंपॉर्टेंट आइटम जो थे एक्सपोर्ट के, जो रोमन एम्पायर से एक्सपोर्ट हो रहा था, वो है वाइन. ठीक, जैसे वाइन, अगर हम वाइन एम्फोर और शर्ट्स ऑफ रोमन वेयर देखें तो उससे हमें पता चलता है कि अरिका मेडू में हमें वाइन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है. अरिका मेडू इज़ इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया. और वेस्टर्न ट्रेडर्स टिन लेकर आते थे, लेड लेकर आते थे, कुराल लेकर आते थे और स्लेव गर्ल्स लेकर आते थे, यानी गुलाम लड़कियाँ लेकर के आते थे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, हाउ दे फ्लरिश्ड. Then we have guilds and then we have art and structure. So craft production started growing in this period with tremendous impetus as trade and commerce, both internal and foreign, was independent to a great extent, was dependent to a great extent on the craft activities. The text called Milinda Punho mentions 75 occupations, of which 60 were associated with craft. The level of specialization was very high. There were separate artisans working in gold, silver, precious stones, etc. Ujjain was a prominent bead making center. Textile industry was another prominent industry. Mathura and Banga, East Bengal, were famous for variety of cotton and silk textiles. The discovery of some dyeing works at some sites in South India indicate that dyeing was a thriving craft in the
area during this period. The artisans in this period touched new heights of prosperity, and there are numerous inscriptions which refer to the donations made by artisans to monasteries. सो क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इस पीरियड में, ग्रो करना स्टार्ट करता है, और ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश कर रहे हैं इंटरनली भी और फॉरेन लेवल पर भी. तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स क्राफ्ट एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है. जैसे अगर हम टेक्स्ट को कंसिडर करें मिलिंदा पन्हो को, जिसमें 75 ऑक्यूपेशंस की बात की जा रही है, जिन 75 ऑक्यूपेशंस में से 60 जो हैं वो क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं. तो जो लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए था वो बहुत हाई था, और सेपरेट आर्टिजन्स थे जो कि गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स पे काम करते थे. उज्जैन एक प्रोमिनेंट बीड मेकिंग सेंटर है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक और इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है. मथुरा और वंगा, वंगा यानी ईस्ट बंगाल, मथुरा और वंगा जो है वो फेमस है